All right. Well, this is JMAN here, and this is Off Air with JMAN. आज मेरे साथ एक गुजराती छोकरे हैं जो राजकोट से आए हैं और he wants to make it big in the scene. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Dhyaan. What's up, bro? Hey, thank you so much, first of all, for having me in this podcast. This is अरे, my first time ऐसा सब नहीं बोलने हैं. being on. तू गुजराती में बोलना कुछ. पहली बार अब podcast करूँ तो it's new, but yes, I wanna share so much Wow, man. about my journey, about what I've learned. उतना ज़्यादा तो नहीं सीख पाया, but I've been doing this. तो But बहुत सारे Instagram पर reels देखे मैंने जो of course, man. काफी बॉलीवुड रेट्रो बॉलीवुड को लेके उसके साथ थोड़ा हिप हॉप वाइब करना. So yeah, man, you were trying something very different too. तो ये कहाँ से क्या सोच के मतलब? Okay, so recently what I've figured out, like, of course, reels चल रही है, to be very honest. So what I try to, I was already into hip hop. I was listening to, I was so inspired. किस from किस it. को सुना? So mostly producers like Troy Boy. Okay. I like Troy his stuff. Boy. Of course, man, it's so great. He's one of my main inspirations when it comes to hip hop. There's another artist is called Taylor. If you have heard, Internet Money is from there. He's a producer as well. He's very good. So उन सबको mainly rappers come, but producers ज़्यादा. Wow. So उन सबको सुन के I've been inspired ये वो, and then I've been making beats recently, pop beats and stuff for my productions and stuff. तो उसमें से ही I thought of combining these retro acapellas with new modern hip hop sounds and stuff, and it's working actually. It's people are Liking it. Because it's different, right? Of course, and that's what like from the beginning, that is what has been my main goal. कि बहुत good boy looks है तेरा. बहुत ऐसा good boy है तू. मतलब ऐसा पढ़ाई कितना किया, क्या किया? Okay, so मैंने पढ़ाई अब 12th तक किया है. I've been a commerce student. I'm a commerce student. Debit what comes in, bro. credit what goes out. ये सिर्फ बैंक की स्टेटमेंट में देखेगा. So to be very honest, I was really good at studies. Right. Until I took I was gonna go into engineering and stuff. That is a whole different story. But what I did, in short, I started going to JEE, those preparations and stuff. Since I was in 8-9. Okay, so 8-9 से वो JEE के because my brother was into engineering, and I knew that I had so family पूरी, my mom is speak in Hindi bro, चलेगा. तो जो मेरी mom है तो she works in postal department. My father is an LIC agent. Wow. So पूरा family background वही से है. My brother is an engineer. तो ये वो, और मैं भी अच्छा था studies में, to be very honest. तो बोला नहीं कुछ घर पे, मतलब हम लोग ने किया, हम लोग तू ऐसा पढ़ाई क्यों, मतलब? हाँ, वही बात है कि फैमिली का जो सपोर्ट एक बार भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक बार भी मुझे नहीं बोला मॉम या डैड ने कि तू ये ना कर. इनफैक्ट माय डैड वाज द वन जिसने मुझे पुश किया. इनफैक्ट आई वाज नॉट, वो होता है ना, एक बच्चा होता है, वो कभी गेम्स खेल लेता है, कभी बास्केटबॉल खेल लेता था, कभी ये. So music was something like that. पहले से ही हंसते खेलते करता था, but I was not serious about very it. serious about it. हाँ, पर वो मेरे डैड ने थोड़ा insist किया. गाना कौन सा बजाया? Okay, so when I was मैं हारमोनियम सीखता था. Wow. So back when I was 12. And you're classically trained as well. हाँ, I'm classically trained. So हारमोनियम में I did 5 years. तबला में I did 6 years. विशारद में. So और उस टाइम भी हासिल किया क्या बात? हाँ, तबला. So tabla was the first thing, the first instrument that I started. और उसके बाद हारमोनियम भी I was learning, क्योंकि my father was, in fact, he was more interested than me in my music. Wow. So it was like कि शौक था उनको, कभी सीख नहीं पाए, but it was like कि नहीं उसको. और कभी तो स्टार्टिंग से बताता हूँ
कि when I was childhood में I used to वो थाली होती है ना, थाली उस को पे पीटना। रिदम आ जाता था मेरा हाँ, since I was 2-3 years old. हाँ। और Because कुछ बहुत हाँ, तो आजू-बाजू में- मॉम और डैड ने वो एक नहीं चीज नहीं, देखी। बिकॉज आजू बाजू में ऐसी साउंड सुनने को मिलती थी। हाँ, क्योंकि डैड वाज गजल्स में थे, यूज्ड टू Listen लिसन to टू all of that. कव्वालीज। Wow. सो उस टाइप पे जब वो कर रहा था तो मॉम डैडी को लगा कि नहीं, दिस उसमें कुछ तो है सेंस। बट देन लेटर ऑन मैंने जब ये फादर ने इंसिस्ट किया एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऐसे तबला ज्वाइन किया मैंने, फिर हारमोनियम। तो वही तो हारमोनियम पे जब आई वाज लर्निंग, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर द फर्स्ट सॉन्ग आई लर्न वाज तुझको देखा तो ये ख्याल है, क्या बात है। तुमको देखा। सो जगजीत सिंह का वो Go for it, bro. I want to listen to it now. तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना छाया, तुमको देखा। So I was learning भोपाली राग। So उसमें मेरे गुरुजी ने ऐसे बोला कि this song comes under this राग। तो वैसे I started वो हारमोनियम पे प्ले किया। So that was my first song that I played. Bro, मेरे को क्या लगता है, very honestly, I think you will infuse your classical with electronic. Of course, man. वही अभी देखो recently I have been listening to artists ये वो, but ये But जो वो दो influences जब वो है। साथ में आते हैं ना bro, that thing hits different, Right. completely different. क्या बात है। Because उसका जो zone बनता है, be it anything, I'm not talking about genres right now, but fusing Indian classical music with these genres is the best. Is the Yeah. ultimate Yeah. thing that or in fact I'm fortunate enough to have knowledge about both the influence, so that I can do that thing. Both of them, yeah. So that is what my goal is कि Yeah. अभी I'm starting with ये वो थोड़ा retro, what people know, so just that what I'm doing वो उसको, but I'll be doing ये वो सरगम ये वो। हाँ, हरकतें चाहिए, तबला चाहिए bro. Of course, क्यों man. नहीं चाहिए? So that is the goal. Of course, beautiful man. I appreciate that. Thank you so much. मतलब कहीं ना कहीं मेरा भी वैसा ही कुछ vibe है। है ना? Of course, man. I've been Yeah. listening to you. आपके गाने भी एक दो सुने, Thanks, but bro. yes, that's the goal. Man, well, it's not about me today, it's about you, bro. So, यार classical सीखा, ये सब किया. Now, how did Smokey enter your life? Like, she's your Of course. guru. Of course, yeah. So what happened is I shifted to Mumbai. I went to AudioCube, the academy where वो सिखाते थे। तो so the first thing मैं उनको मिला and the first thing she asked me like what do you do? तो मैंने बोला I'm a musician, I'm a producer, but अभी मुझे DJing सीखना है। So मुंबई में उसी के लिए, मतलब म्यूजिक के लिए शिफ्ट हुआ। तो the first thing she told me is like तू म्यूजिशियन है, you're a singer as well, why do you want to go into DJing? And I was like नहीं, ये चीज है कि I don't see, I sing as well, but I don't want to be known as a singer, to be a very honest. See, A.R. Rahman भी गाता है, but you don't know him as a singer, you know him as a for his music, for his he sings, वो एक अलग बात है, वो एक उसका एक एडवांस मतलब उसका प्लस पॉइंट है, but I want to be known for my music, तो वही मैंने बोला। and of course she has been helping me through my journey। एक ही साल हुआ है, I've been performing right now, I've been fortunate enough to meet so many people, you know, academy पे Zoeb sir, Jay sir, Smokey, and lot many people यहाँ पे of course यार Mumbai, so गली गली artists। तो वही चीज है, I've been fortunate enough to have these type of people in my life to, you know, really push me। और कर रहा हूँ बस। सही है bro, सही है। good vibes man, good vibes with you. So कुछ ऐसा ओरिजिनल किया, कुछ डाला है आपने? हाँ, सो मैंने आज तक के 5 to 6 सॉन्ग्स मैंने खुद लिखे हैं, खुद गाए एंड प्रोड्यूस भी किया है। सो स्टार्टिंग में मेरे पापा ने, सो माय फर्स्ट ओरिजिनल वाज द वन वो व्हिच माय फादर रोट, माय फादर राइट्स। वाओ।
मतलब उतना ज्यादा नहीं बट उनके लिए लिखता है. सो ही रोट समथिंग और उसने मुझे दिखाया कि दिस इज समथिंग यू कुड इफ यू कैन कुछ इसको कर सके. तो ऐसे ही मेरे पे थोड़ा बहुत नॉलेज था. दिस वाज 3-4 years बैक. वाओ. तो हर तरफ वाज द सॉन्ग दैट आई फर्स्ट स्टार्टेड विद एंड धीरे धीरे उसमें सिंगल्स और ओरिजिनल्स वो सब फ्यूज करते गया. मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ बिकॉज आप सिंगिंग करते हैं. तो अगर आप सिंगर हो ना, कोई भी पार्टी में जाओ ना, मेरा दोस्त गाएगा. ये क्यों होता है? ऑफ कोर्स सी वो ये चीज एक है. जरूरी नहीं है कि वो आप परफॉर्म करे bro. हाँ बट ये मेरा दोस्त है वो गाएगा. यस दैट्स द थिंग. और इनफैक्ट मैं तो आई वाज वेरी मच इनटू म्यूजिक. ये वो सिंगिंग तो मैंने बहुत बाद में शुरू किया. तो बट एज सून एज आई स्टार्टेड सिंगिंग ना, वो म्यूजिक वाला पार्ट तो लोग ऐसे देखने को बंद, मतलब उनका एक नजरिया चेंज हुआ. ओ ही सिंग्स एज वेल. तो जहाँ भी जाता था लाइक he sings. My father also told me कि तू गा. So that was a thing. Singing तो है ही मेरे पास, but what I wanted to do was music. So वो एक चीज रही है कि सिंगर्स को हमेशा से, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, बट सिंगर्स को ऑलवेज एक अपर एडवांटेज होता है. और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स और म्यूजिशियंस ये वो. I would like to add something to it. है ना. सिंगर्स को एडवांटेज मेरे गुरुजी ने बताया था मेरे को कि Yes. एक क्लासिकल कचेरी होती थी. कचेरी मतलब उनका दो वीणा होते थे, मृदंग होता था, सिंगर्स होते थे. उसमें एक कोनुगोल आर्टिस्ट होता है. कौन सा? कोनुगोल, जो मृदंग की जो बोली है, बोलता जिसे बोलते हैं, उसको कोनुगोल बोलते हैं. ओह. इन कर्नाटक. तमिल. हाँ, कर्नाटक. सो देन उसमें से फिर सिंगर को परेशानी होने लगी थी. सिंगर आलाप लेता था तो ये बीच में घुस जाता था. घुस जाता था. तो सिंगर को नहीं भाई इसको पहले निकालो. सो ऐसा उन्होंने मुझे बताया कि ये हुआ है. और ऐसा एक आर्ट जो है वो थोड़ा सा पीछे रह गया है. यू नो. सो आई अंडरस्टैंड कि वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम एंड व्हाट मैं जो सीख रहा हूँ और मेरे से जो बाहर निकल रहा है वो बहुत अलग चीज है. सो वो पता नहीं है ब्रो. सही है. और स्पेशली गुरुजी ने बोल दिया तो उससे ऊपर तो yeah bro. So tell me something about your guruji bro. Okay, so I've had the pleasure of multiple gurus in my life. So when I started my musical journey, I started with tabla. So तबला में सीखा भागव जानी के पास से मेरे गुरुजी. सो 6 साल उनके पास से सीखा. साजिद मीर करके है जिनके पास से मैंने हारमोनियम सीखा. एंड जो सिंगिंग है वो आमिर खान साहब, उस्ताद आमिर खान साहब इंदौर घराने से, उनके डिसाइपल के डॉटर पीयू सर के उनके पास से सीखा. और 2-3 साल से तो ऑफ कोर्स आई हैव बीन इंडियन क्लासिकली से वोकल्स में भी ट्रेन कर रहा हूँ. सो मेरे को आई वांट टू नो दिस बिकॉज़ यू हैव बीन डूइंग तबला. मेरे को कभी-कभी बहुत दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाने का मन करता है. बट वो नेचुरली होता है कि इट इज जस्ट बिकॉज जो हम म्यूजिक सुन रहे हैं उसकी वजह से होता है. ओके. सो द थिंग इज कि समटाइम्स मेरे केस में अगर मेरी बात करूँ तो क्या हुआ था कि आई आल्सो प्ले गिटार. तो क्या हुआ था कि आई वाज वेरी अट्रैक्टेड टू गिटार एज अ, क्योंकि मैं हारमोनियम बजाता था, तबला बजाता था, बट व्हेन आई सॉ समवन प्लेइंग अ गिटार दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव टू मी. सो व्हाट हैपेंड इज कि उसी अट्रैक्शन की वजह से आई थॉट लाइक कर लूंगा मैं. तो मेरे लिए ऐसा था. बट बाद में मैं थोड़ा एक्सप्लोर किया उसको. 6-7 महीने आई डिड. फिर पता चला कि दिस इज अ होल डिफरेंट वर्ल्ड इन ऑल टुगेदर. फिर उसको सीरियसली थोड़ा लिया, 2-3 साल दिए थोड़ा अच्छे से. बट वही है कि मैंने स्टार्ट हारमोनियम से किया था. सो एक सुर का जो बेस होता है ना, दैट वाज क्लियर. And then I just had to implement it in my playing style. सुर तो सेम ही है, 12 नोट्स होते हैं बस, उससे ज्यादा तो है. It's just वो सीख रहा था, तो वो थोड़ा एक प्रोसेस जल्दी हो गया वो चीज. उसमें भी हेल्प किया. और इनफैक्ट ऐसा बोलते हैं, मुझे पता नहीं बट मोस्टली बोलते हैं कि तबला जो सीखा होता है ना, उसका हर एक बेस क्लियर रहता है. और उसमें भी थोड़ा इंडियन क्लासिकल का था, तो वो एक बहुत हेल्प मिला मुझे, बहुत पुश मिला.
तबला एंड हारमोनियम वाज बेसिक, जिससे मुझे सुर का और ताल का तो जो फाउंडेशन व्हाट वी कॉल म्यूजिक में, और उसमें भी इंडियन क्लासिकल, सो दैट अनकॉन्शियसली आज भी मुझे बहुत हेल्प करता है। हाँ, मतलब आज भी इतना मुझे हेल्प करता है, पता नहीं रहता ऐसे, बट व्हेन आई हियर आर्टिस्ट से कि क्रिएटिव ब्लॉक्स आ रहे हैं, कर नहीं पा रहे म्यूजिक, बट तब जाके पता चलता है कि यार वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि ये जो स्टार्टिंग में, और प्रोडक्शन में कैसा है, टू बी ऑनेस्ट आजकल कुछ भी कर सकते हो आप, इवन इफ यू आर नॉट उतना टैलेंटेड, इवन इफ यू डोंट नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्टफ, यू कैन प्रोग्राम इट, यू कैन डू इट। बट मैं उस जोन से आया था कि पापा ने, गुरुजी भी बोलते थे कि नहीं ब्रो, कि बेटा रिकॉर्डिंग में कभी ऐसे दूसरे टेक नहीं मिलते, ऐसे ही सिखाते थे। मेट्रोनोम पे भी इफ यू आर प्लेइंग तो अच्छे से बजाओ, तहजीब से बजाओ एक, तो वैसे ही सीखा था। उसके बाद में प्रोडक्शन में आया, तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि एक मेरा जो बेस था दैट वाज वेरी क्लियर। तो भगवान की दया से और गुरुजी के जो आशीर्वाद मिलते हैं उसकी दया से आज तक आई हैव नॉट फेस्ड द क्रिएटिव ब्लॉक। एंड पता नहीं वो चीज हो रही है, बट कहीं ना कहीं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज ऑलवेज इन्वॉल्वड। या मैन, इट हैज टू बी ब्रो, ऑफ कोर्स इट हैज टू बी। वो रूट्स है ब्रो। तो मैं ये सोचता है कि यू नो कि बीट्स होने चाहिए, कुछ और होना चाहिए, ऑफ कोर्स एक सिंथ होना चाहिए, या कुछ होना चाहिए, एक वाइब होनी चाहिए, उसके बाद क्लासिकल भी होना चाहिए, क्लासिकल भी होना चाहिए। और ये चीज मैंने सीखी थी मेरे गुरुजी से ही, कि क्लासिकल म्यूजिक है ना, वो हमने बहुत, मतलब आज का यूथ जो है उन्होंने बहुत थोड़ा सेपरेट हो गया उस चीज से, कि आज नया म्यूजिक ये वो इन्फ्लुएंस बहुत आ गया। बट अगर देखने जाओ ना तो सब कुछ उसमें से ही है। हाँ, बेस तो कहीं ना कहीं उधर से ही हाँ, है, बेस कहीं ना कहीं, बट आप अगर एक नजरिया हो ना आपके पास तो सब कुछ उसमें से है। एंड स्पेशली इंडियन म्यूजिक भाई, इंडियन म्यूजिक जो है इतने सालों से बॉलीवुड कितने सालों से चल रहा है। पहले राग बेस्ड कंपोजिशन हुआ करती थी, अभी भी आज भी इफ यू फिगर इट आउट, सब कहीं ना कहीं एक ही जगह पे जाके मेलोडीज म्यूजिक, यस एग्जैक्टली। तो वेस्टर्न क्लासिकल है वो एक हो गया, इंडियन क्लासिकल, सब कहीं ना कहीं तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। आज आप देखो लैटिन म्यूजिक इफ यू लिसन टू, तो वो भी कई बार किरवानी राग, हार्मोनिक माइनर, ये सब स्केल भी एक दूसरे के साथ जाते हैं, तो इन्फ्लुएंस है सबको। बट उसमें क्या है कि क्लासिकल म्यूजिक, दिस इज व्हाट आई हैव लर्न, कि कहीं ना कहीं वो आ ही जाता है, कहीं ना कहीं तो वो हेल्प करता ही है। इफ यू, तो व्हाट आई वुड लाइक टू एडवाइज अदर्स एज वेल, कि इफ यू जस्ट थोड़ा ही, ऐसा नहीं कि यू आप हार्डकोर क्लासिकल सीख लो, बट जस्ट थोड़ा वो नॉलेज हो तो इट वुड हेल्प देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। क्या बात है ना? हाँ, सुपर वाइब ब्रो। आई मीन, सो बहुत गहरी बातें आपने कही हमसे। So I'm really, so what took this guy from Rajkot to think about this vision? किसी को देखा, किसी को देख के इन्फ्लुएंस हुए, क्या किसी को देखा, क्या हुआ? So one thing I want to talk about, I was in school, मुझे याद है that was time जब मैंने जैसे कि बोला कि इंजीनियरिंग ये वो सब हो रहा था। इंग्लिश की बुक में एक चैप्टर था, Steve Jobs, he was addressing Stanford University graduates, तो उसके ऊपर पूरा था कि you got to find what you love, chapter it was titled। तो उसमें he was saying that कि उस बंदे ने गराज में शुरू किया, as you know, Apple iPhone ये वो, बट उसकी जो वैल्यूज, कोर वैल्यूज की बहुत सारी चीजें उसने की, बट लेटर ऑन ऑफ लाइफ में मैंने स्टार्टेड कनेक्टिंग द डॉट्स, तब पता चला कि ओ मैंने ये सीखा था, ये यहाँ पे काम आया मुझे, ये सीखा था यहाँ पे। सो उसने ये बोला कि इवन इफ उस चैप्टर में बहुत सारी चीजें थी जो मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल पे इम्पैक्ट करी, क्योंकि उस वो टाइम भी ऐसा था कि आई वाज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑन स्टडीज, और वो JEE का और वो सब आ रहा था मेरे पे,
तब तक तो क्या तो थोड़ा ऐसा हाँ, पेरेंट्स ने फोर्स किया था कभी वो करने? नहीं पेरेंट्स नहीं, मैंने खुद से You सामने से, wanted to. क्योंकि एक सोसाइटी का वो भी था कि भाई म्यूजिक से दोस्त लोग की अर्निंग वजह नहीं से है। हाँ, और सोसाइटी बोलता था ये, हाँ ऑफ हाँ कोर्स। हाँ, मतलब एक एक होता है ना कि अरे, और आई बिलोंग फ्रॉम फैमिली जो मतलब मेरे कास्ट में ये वो, तो थोड़ा वो रहता था कि एक सोसाइटी का एक पर्सपेक्टिव था मेरे पे। हाँ, मूवीज का और कितना म्यूजिक मूवीज का कितना इम्पैक्ट पड़ा? वाचिंग नहीं, मूवीज कुछ इम्पैक्ट पड़ा? मूवीज का नहीं, उतना ज्यादा नहीं, बिकॉज अगर मैं देखता भी था तो एक्शन थ्रिलर ये वो, तो रियल लाइफ बहुत कम देखा था मैंने, बट मूवीज का उतना नहीं। बट हाँ, ये एक चीज थोड़ा था, सोसाइटी का एक व्यू थोड़ा जो था। और तब और तक म्यूजिक, आंटी लोग आगे पूछते थे क्या कि તમારો છોકરો हाँ जूम करवाना, हाँ भाई हाँ, दौड़ी पैसा माटे जो से ने। पैसा जो से, हाँ हाँ, तो हाँ वही, वो सारी चीजें आती थी ये वो, पर मॉम डैड ने कभी वाह कभी man, आज तक इन स्पाइट ऑफ कमिंग फ्रॉम दोस फैमिलीज जहाँ पे ये नौकरी ये करो वो करो हाँ। पैसे कमाओ, डॉक्टर इंजीनियर हाँ, और एमबीए, हाँ, और उसमें भी डॉक्टर इंजीनियर्स भी ठीक है, बट गवर्नमेंट सर्वेंट्स, तो वो एक अलग ही पर्सपेक्टिव था। पर आज तक कभी एक बार भी मेरी मॉम या मेरे डैड ने आज तक एक बार नहीं बोला कि डोंट डू दिस। वाह man, इनफैक्ट दे वर द वंस वो पुश्ड यू। और कहीं ना कहीं ये चीज बहुत मैटर करती है, जब व्हेन यू हैव योर पेरेंट्स बाय योर साइड, थिंग्स जस्ट स्टार्ट वर्किंग। एंड उनका तो सपोर्ट रहा ही है, और उसमें ये स्टीव जॉब्स वाला जो मैं आपको बता रहा था कि वो सब, मैं तो थोड़ा इमोशनल हो गया। हाँ, आई वाज व्हेन आई टॉक Man, it's okay, man. It's an amazing vibe. You're sharing a great story, bro. so whenever I talk about my mom and dad, I Yeah, tend to get a little, of course, bro. Yeah, bro. You don't have to. so कहीं ना Man. कहीं पानी पियो। नहीं of course आराम से take your time, bro. I'm good। वो That's क्या so है कि sweet of you, हाँ, man. एक लोगों से सुनता आ रहा हूँ मैं कि ऐसे यार मॉम डैड का सपोर्ट नहीं है, वो एक चीज, अगर वो एक सही चीज हो जाती है ना, बहुत सारे लोगों का लाइफ बदलेगा, बहुत बहुत ही नेक्स्ट लेवल इम्पैक्ट कर जाता है। एंड स्पेशली आर्टिस्ट जो ऑलरेडी इतनी चीजों से स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद जो उनके लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग होते हैं उनकी तरफ से जब थोड़ा सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो थोड़ा एक रहता है यार। सब लोग अपने अपने हिसाब से हाँ। अपनी चीजें ढूंढ लेते हैं, हाँ एग्जैक्टली, और बट थोड़ा टाइम लगता है उसमें। क्या होता है ना Yes. कि कभी कभी ये लगता है कि हम लोग सही कर रहे हैं क्या हम लोग सही जा रहे हैं क्या, कोई हम लोग को बताने वाला नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये रास्ता हम खुद बना रहे हैं ब्रो, है ना। तो फिर कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा होता है, वो बहुत आता है कि यार मैं ये सब कर रहा हूँ, मेरे को क्या करना है, मैं ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। फिर एक टाइम पे सब फट के निकलता है ब्रो, और जब ये निकलता है बस उसको निकलने दो। ऑफ कोर्स यार, और उसके बाद जो होता है ना, दैट इज टोटली मैजिक। या और ये सारी चीजें हुई, देन आई वेंट होम, ऑलरेडी मैं सब ये था, और फिर वो रियलाइजेशन तो होता है ना, अरे यार म्यूजिक में भी अच्छा हूँ, इतना बुरा भी नहीं। और तब तक क्या, मूवी के हिसाब से मैंने देखा था, म्यूजिक वाज नॉट उतना कि उसको उसमें ही जाना है, इट वाज जस्ट अ हॉबी। मैं सीख रहा था, कर रहा था, मुझे मजा आता था उसमें। और you had your passion towards it. हाँ, नो, पहले इट वाज सॉर्ट ऑफ, मैं बोल रहा था ना, मस्ती में कर लेते। प्लेफुल। मैं बास्केटबॉल खेलता था, फिर गेम्स खेलता था, मतलब एक आध वीक तक एक ही गेम खेलता है, उसमें कुछ फिर ऐसा नहीं होता था कि म्यूजिक कर रहा हूँ, आई एम वर्क, ये स्टडीज, ये वो एक प्लेफुल था। और मेरे मॉम डैड भी उतने थे कि भाई कर रहा है, जो थोड़ा सीख रहा है ये वो, कुछ ना कुछ तो सीखेगा, तो वो टाइम था। बट उसके बाद आई रियलाइज कि नहीं, आई कैन टेक दिस थिंग थोड़ा सीरियसली। एंड फर्स्ट थिंग कि यू हैव, मतलब उसके लिए एक प्यार होना चाहिए, यू नीड टू हैव अ लव फर्स्ट। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन इज कि उस चीज से प्यार होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो चीज मुझे पढ़ाई में तो थी ही नहीं, क्योंकि मैं कर रहा था, और एक पॉइंट के बाद आई यूज्ड टू गेट बोर्ड। बट जब मैं ये करता था ना, आई ऐसे Never ही, got bored. हाँ, सो ऐसा नहीं लगता कि मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग, बस वो होता रहता था, एंड आई यूज्ड टू डू इट। तो फिर मैं घर गया, मैंने मॉम को बोला, मॉम
मेरे से इंजीनियरिंग नहीं Wow. एंड इट्स नॉट वर्किंग आउट एज आई थॉट. और मुझे आई रियली फील कि इफ आई वर्क ऑन माय म्यूजिक ना, क्योंकि मुझे पता था कि दिस इज द एज कि उसमें अगर मैं अच्छे से कर लूंगा ना म्यूजिक, तो उसमें कॉन्फिडेंस था कि कुछ ना कुछ तो करी. और तो मॉम जस्ट सेड वन थिंग, शी वाज थोड़ा ऐसे चौंक गई कि अरे अभी तक तो इंजीनियर ही है. तो शी जस्ट सेड वन थिंग, हाँ सोच ले तेरे हिसाब से, सब हर एक एस्पेक्ट में एक बार सोच ले, वी आर विथ यू, वी आर देयर टू सपोर्ट यू. बट बाद में आके तू हमें ना कह दे कि आपने मुझे ये नहीं करने दिया. Right. तो वो सब सोच लिया, ये वो हो गया. एंड देन दैट वाज द टाइम कि जो हॉबी जो मेरी थी ये वो उसमें से इट कन्वर्टेड इनटू अ पैशन. Wow, man. सो उसके बाद आई जस्ट डेडिकेटेड. फिर 11th भी ऐसे 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 हुआ. 12th तो मैंने एक्सटर्नली कर लिया था. सो 12th पूरा मैंने एक्सटर्नल किया एंड देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे. Wow, man. And that Been is a how journey. it started. Our journey, bro. I mean, you're doing your crazy things, man. I mean, Thank you so I much. really appreciate it. Thank you so much, man. And thank you for taking out time and coming and meeting me, bro. Of बहुत- course, thank you for inviting me, Bro, bro. बहुत सही लगा भाई, अच्छा मजा आया. Man, where does one have to follow you on Insta? Okay, so my handle is Dhyaan Music, or I keep uploading stuff on YouTube as well. So there's this channel of mine, Dhyaan. So पहले तो कोई ध्यान लिखता है ना तो वो ध्यान के वीडियोस ही आते हैं, ध्यान के meditation videos and stuff. देखा है तुमने? बट उसमें हाँ मेरी एक चैनल है ध्यान, मेरी आर्टिस्ट चैनल है, तो उस पर मैं डालते रहता हूँ. और इंस्टाग्राम पे ऑफ कोर्स आई एम मोर एक्टिव आजकल बिकॉज Do you listen to Turban Trap? ऑफ कोर्स मैन टर्बन ट्रैप तो यार एक ऑफ कोर्स Because- गुरबैक्स. Man, मेरे फिर को बहुत उसके vibe बाद लगा. हाँ मतलब उतना उसका एक गाना है ब्रो, ध्यान. गुरबैक्स का कौन था? ध्यान, गाने का नाम ओ ध्यान. ध्यान, आई हैवंट हर्ड इट. Turban Trap. ओ मेरे I को need काफी, man, मेरे को बहुत अच्छा लगता है. I don't know, it would be, हाँ सुनते हैं अपन. उसका वही है ना, सी उसका वही है कि इंडियन एलिमेंट्स ही Right, वो right. लेको ट्रैप Absolutely. में Absolutely. फ्यूज कर. वैसे लोग इंस्पायर करते हैं ब्रो. और ऐसी भी चीज नहीं है कि वो मेन स्ट्रीम नहीं जा सकता. हाँ हाँ. आजकल जो बोल रहे हैं ना लोग कि मेन स्ट्रीम देयर इज नथिंग Nothing is mainstream. if it hits you it hits you. Yeah. और सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल लोग बोल रहे हैं कि कोई भी फेमस हो रहा है, कोई भी मतलब एकदम इजी सॉन्ग्स, मतलब इजी स्ट्रक्चर्स, इजी साउंड्स, फेमस हो रहा है. आज ऐसा लोग बोल रहे हैं. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इतने सारे लोग सुन रहे हैं तो कोई पागल तो है नहीं कि वो चीज फेमस हो रही है. सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज, सो आज का जो म्यूजिक है ना, इट इज वेरी अभी वो जोन में जा रहा है कि जहाँ पे पीपल नीड टू इंटरेक्ट विद इट. अगर पीपल वोंट अंडरस्टैंड ना, सो वो लेंगे नहीं. सो what my perspective about this is that I've been inspired by trap and dubstep and वो भी है एक soon electronic music का. But if I want to present it in front of an audience that doesn't listen to, that does not give a fuck about what you play, they just want their songs to be played. So what I do is एक हिंदी सॉन्ग लो, उसका आकापेला मिक्स करो ट्रैप के साथ, मिक्स करो डबस्टेप के साथ. तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन कि वो जो क्राउड है उनको जो चाहिए वो मिल रहा है, जाएगा. एंड तुमको जो चाहिए वो मिल रहा हाँ. है. सो वो होता है ना क्या ये पार. I respect you for that, man. Wow, man, क्या बात है. सो या तो इस पार या तो इस पार, बट मैं थोड़ा बीच में. चल रहा हूँ. सो Absolutely, you're having fun, bro. हाँ, सो इन्फ्लुएंसेस ये वो, तो दैट इज व्हाट मेरा एक रहा है कि ऑलवेज सी पब्लिक को तुम सीधा दो. दैट इज व्हाट स्मोकी इज राइट नाउ. अगर मैं उसकी बात करूँ, शी इज डूइंग सो गुड इन इट. शी इज डूइंग ड्रम एंड बेस फ्लिप्स, यू गाइस शुड हियर इट. Yeah. So she is doing this drum and bass flips of like the popular tracks, but
एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिल जाता है, लोगों को पता चलता है व्हाट इज दिस, दिस इज समथिंग वेरी न्यू, दिस इज समथिंग वेरी फ्रेश। और फिर आप दो योर पर्सपेक्टिव, मेरा पर्सपेक्टिव बहुत अलग है इस है ना? चीज को लेके। यस यू आर गिविंग देम व्हाट दे वांट एंड यू आर गेटिंग Yes. व्हाट यू वांट। यस बट मैं ये सोचता है कि जब कुछ निकल रहा ना, वो जैसा निकले उसको निकलने दो। ओके, वो ऑडियंस पसंद करता है या नहीं पसंद करता है दैट इज वो छोड़ दे, तू वो करते जा जो तेरे को लग रहा है कि मेरे को ये करने है, मेरे को ये करने है, मेरे को ये करने है। अगर वो लोग देखता है सही है, नहीं देखता है तो भी सही है, लेकिन तू खुश है। बहुत सही पर्सपेक्टिव है, या बहुत सही है। और ये और- बहुत, इट्स जस्ट नॉट दैट कि हाँ everyone sees this, हाँ एंड टू but बी they वेरी don't know the ऑनेस्ट, struggle behind it, bro. यस I've worked as a door-to-door salesman. I've sold credit cards. I've done so many other jobs. I worked in a call center, bro. I've done all of that. And then वो जो point, you remember we were talking about this, यहाँ पे एक होता है कि ये नहीं हो रहा है, ये जैसे engineering for you, वो नहीं हो रहा है. I used to come back sitting in a rickshaw from Powai to Sion, and I'm crying in that rickshaw, bro. पूरा टाइम मैं रो रहा है क्योंकि मेरे को कुछ दूसरा करने का था. And then finally going, giving your CDs to different radio stations. वो टाइम पे स्ट्रगल अलग था ब्रो. एंड मिला वो भी ऐसा लग रहा था कि नहीं चाहिए, छोड़. तभी आके ऐसा सामने. Then I was like, okay, let's do this. that's how it all began. Yeah, man, started then. Then yeah, I mean, हाँ ठीक है. So it's good. And now so I also have to branch out doing something different. I'm just not that. And it's there. That's a part of my personality. I'm other things also, which I sincerely feel, and I'm trying to showcase each one of them. और उसमें क्या है, सी वन मोर पॉइंट, कि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो अपना म्यूजिक छोड़ देते हैं यार, Yeah. ऐसे मतलब यार नहीं हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, वो एकदम डीमोटिवेट हो जाता है. Of सो course, व्हाट आई bro. टेल देम कि एक ऑडियंस पर्सपेक्टिव से भी सोच. मैं ऐसा नहीं बोल रहा, तेरी आर्ट रख, तेरे पास है, तू बना, तुझे जो बना है बना, बट एक पर्सपेक्टिव रख. तो उसकी वजह से क्या होगा, यू वोंट हैव टू क्विट व्हाट यू डू, यू विल कीप डूइंग व्हाट यू डू, बट कीपिंग दैट स्लाइटेस्ट बिट सब in लोग mind. ऐसा नहीं सोचता ना bro. हाँ एग्जैक्टली, वो भी है. सब लोग का दिमाग बहुत अलग चलता है. 5 उंगली अलग है, हर इंसान अलग है, हाँ हर प्राणी अलग है. ऑफ कोर्स So then you have to give it to the universe that ऑफ कोर्स कि जो होगा. let that happen. Whenever it happens, it happens. हाँ अपन बात करते हैं ना उससे. बोलता है ना, दिल में कुछ देता है, तोड़ देता है. हाँ ना, चलना भी बहुत टाइम हो गया. और सी आर्ट है यार, ऐसा भी नहीं है कि अभी लोगों के हिसाब से बना है ये वो, Right. है ना, वो निकल गया. Yeah, man. एंड मोस्ट ऑफ जैसा जो भी म्यूजिक जो टाइमलेस है वो वैसे ही बना है ना यार, कैसे Right. बना है. Yeah, man. So सोच के चीजें नहीं होती. ऑफ कोर्स that's a thing I would agree. Absolutely. Thanks, man. Thanks for coming and vibing with me. And I hope to see you performing soon. Hey man, come to आगे, especially मेरा और स्मोकी का Of course, I know you perform together. I'll definitely come and pay a visit and say hi to you. Of course, you can also take the mic and spit some bars. Of course, Let's so good at it. I heard it. No, man. We gotta be vibing together and then something. Yeah. Vibe होना जरूरी है. मैं ये Of मानता हूँ ऐसे है course. कि मैं कि ये हीरो मतलब तुम लोगों का कुछ 774 BPM चल रहा है और मैं क्या मतलब, अरे यार तू वो नहीं होना चाहिए. तो पहले वाइब करेंगे, अगर वाइब हो रहा है मजा आएगा. तो कुछ या ब्रो, तभी कुछ निकलेगा ना, तभी मैं कुछ छोड़ेगा, तू बोलेगा, तू क्लासिकल कुछ करेगा, you know that will be the vibe, bro. Yeah, it just cannot be like I'm not saying that complete rap. मैं बोलता कि ठीक है, उसमें रैप आएगा बहुत अच्छा है, उसमें क्लासिकल आएगा बहुत अच्छा है, उसमें कुछ और धुन आ गया बहुत अच्छा है, वो एक अलग बीपीएम पे गया बहुत अच्छा है. ऐसा सुनने का ट्रेन करो ना अपने आप को यार तुम लोग.
तुम क्यों ट्रेन नहीं करते अपने आप को? नहीं हाँ, सुनने वाले को, हाँ ऑफ कोर्स यार। हाँ वो हो सकता है, लेट इट बी नो यार, जाने देना उसको, हर चीज में ऐसा कंट्रोल नहीं है, मेरे को मजा नहीं आ रहा है, तुम्हें छोड़। तो यू नो आई वाज लाइक यार, मैं अपने दोस्तों को लेके गया था, लाइक ये एक इलेक्ट्रॉनिक आर्टिस्ट है, इसको सुनो, his name is Stemming, it's even electronic artist proper, so vibe अलग है bro। इलेक्ट्रॉनिक आर्टिस्ट मतलब कुछ वाइब हो सकता है उसमें, नेसेसरली नहीं है कि तू ड्रम एंड बेस सुनने जाएगा, यू नो यू probably listen to some techno, कुछ और सुनेगा, उसका वाइब जो है तू लेने जा रहा है, सोच के नहीं जा रहा है कि आज ये बजेगा ये बजेगा। तो वो फ्रेश एक्सपीरियंसेस, फ्रेश ऑफ कोर्स। Yeah. उसका जो है इट इज ऑन द पॉइंट, मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट भी ऐसे सेट्स प्रिपेयर करके नहीं जाते, राइट, सो एवरीथिंग दे प्ले इज अकॉर्डिंग टू द Vibe. वाइब, या that is the purest form of music, I can say. थैंक यू मैन, थैंक यू फॉर टेलिंग दैट, Thank you so much, Jay. बहुत वाइब। I'm gonna be back with another artist on the podcast. This is Off Air with JMAN, and thank you bro, Let's Yeah. go. Thank you so much man, peace। Thanks. Yo इसे ले ले bro। आस्तीन के सांप साले, आस्तीन के सांप, नहीं करना इन्हें माफ, लेना इन्हें नाम, मुंह खोल कर निकल जाए सारे तेरे ख्वाब, सारे तेरे। बस इंतजार है कि जज्बातों से खेलने का, अपनी बढ़ाई करके बूथ में बैठने का, वर्तमान का चमगादड़ बन के खून को चूसने का, खून को